Hi, guys. So, before beginning with this intellectual property rights session, let me introduce myself briefly. So, my name is Manika. I am a Faculty of Law first year student from LC2. And further, I would like to appreciate this bona fide motive and bona fide initiative of ABBP for guiding you all, the due LLB aspirants. And further, I would like to congratulate Sudeep sir for persuading me really well to participate into this and to organize this session. So we would be beginning with intellectual property rights today. And guys, I will be very obliged if you would be asking your question right in the end, so that हम सब एक flow में इसको complete कर पाए. तो end में I'll be clearing all your doubts. तो बीच में please try to note your questions down so that I would be able to take them in the end. Okay, so I think that won't be any problem. So let me begin with the session. So I will be presenting my screen. So and also I would be providing you with the PPT in the end. So you don't need to take any sort of screenshot of anything like that. So I will be providing you that. So give me just 2 minutes. I'll be presenting my screen. Wait. So is it visible? Shashank, is it visible? Yes, yes. हाँ जी. Yes, ma'am. Okay. So shall we begin, Shashank? Yes, yes, of course. Yeah. So here we will be covering in this very PPT. Wait a second. Mm, yeah. So we would be covering the validity, the time period for which intellectual property right survives, the registration, the enactments, and the questions which are really important for the exams and certain important facts. ठीक है जी. So let's begin. So let's discuss what is intellectual property right, like briefly, कि जो हमारे examination point of view से important है. So intellectual property rights refers to creation that arises from human intellect. ठीक है. तो इंसान के brain से जो आता है property, वो होता है intellectual property right. Further, these includes inventions, literary work, artistic work, symbols, name, images, which are used in commerce. Commerce as in जिसकी कोई economic value हो. ठीक है. तो जिससे हम पैसा जनरेट कर पाए बेसिकली. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. कौन सी दो कैटेगरीज हैं? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट. सो अब इसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर इट्स डिवाइडेड फर्दर इनटू 4 पार्ट्स. अब ये पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज पेटेंट, सेकंड ट्रेडमार्क, थर्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड फोर्थ ट्रेड सीक्रेट्स. ठीक है जी. तो ये जो डिविजन है ना, ये 2 पार्ट में ये आई थी थ्रू कन्वेंशन. जो कन्वेंशन हमारी हुई, जैसे बर्न कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन. सो कॉपीराइट इज situated on Berne Convention, whereas industrial property right is situated on Paris Convention. इसको हम अभी आगे डिटेल में करेंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ. सो अब हम आते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम व्हाट दे प्रोवाइड इज which one of the following is not one of the nature और characteristic of intellectual property right. और आपको बताना है कि कौन सा इनमें से नहीं होता है. So अगर आपको आइडिया होगा कि कौन से characteristics होते हैं तो you would be able to mark it easily. So we would be doing the creation of human mind. ये हमने पहले किया, creation of human mind. The second point is intangible property, which is also known as incorporeal property. इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी हो या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो, बात एक ही है. इंटेंजिबल का बेसिक मतलब क्या है? विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड. ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते बट दैट एग्जिस्ट. ठीक है जी. उसके बाद थर्ड पॉइंट है एक्सक्लूसिव राइट गिवन बाय स्टैट्यूट. एक्सक्लूसिव राइट किसको दे रहे हैं? जो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ओनर है, और उसके पास होते हैं मोनोपोली राइट, क्योंकि कोई और उन राइट्स को यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर दैट पर्सन. या फिर या तो उसने उस प्रॉपर्टी को किसी को असाइन कर दिया हो, या किसी को वो उस प्रॉपर्टी का लाइसेंस दिया हो. उसके अलावा कोई और बंदा उस प्रॉपर्टी को नहीं यूज कर सकता. तो ही हैज अ एक्सक्लूसिव राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी.
Further, fourth point is it is time bound. Time bound मतलब let's say आपने कोई intellectual property right खरीदा over patent, तो it would be time bound for a specific period of time. अगर वो 10 years जो expire हो गए, वो 20 years जो expire हो गए, उसके बाद that intellectual property right either expires and goes to the public domain. अगर expire नहीं होता है तो उसकी evergreening हो जाती है या फिर उसको renew करा लिया जाता है. तो इसलिए these are time bound for a limited period of time. For the इनकी टेरिटोरियल इन्फोर्समेंट होती है. टेरिटोरियल इन्फोर्समेंट एज इन कि लिमिटेड टेरिटरी में रहते हैं. अगर मैंने इंडिया में कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रजिस्टर करवाया है, लेट्स से दैट बी पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क, मैंने कोई ट्रेडमार्क इंडिया में ले लिया, तो वुड दैट बी फॉलोड इन अदर कंट्रीज? सो द आंसर इज नो. अगर मैंने इंडिया में एक ट्रेडमार्क लिया है तो मुझे यूएसए में एक अलग ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, आइदर दैट बी फॉर द सेम नेम. पर अगर उसी सेम नेम को मुझे रजिस्टर कराना है तो सर्टिफिकेशन वुड वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एज पर देयर ओन लेजिस्लेशंस. So the sixth part is assignable and licensable. Assignable का मतलब क्या होता है? Assignable का सिंपली ये मीनिंग होता है कि हमने इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सेल कर दिया. We just sold it out, तो हमारे अब इस पे कोई राइट्स नहीं बचे. Whereas लाइसेंसेबल का क्या मतलब होता है? लाइसेंसेबल का मतलब होता है मैं किसी और को परमिशन दे रही हूं टू यूज दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद उसके एक्सक्लूसिव राइट्स मेरे पास ही हैं, बस मैं उसको थोड़े टाइम के लिए परमिशन ग्रांट कर रही हूँ कि यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो असाइनेबल और लाइसेंसेबल होते हैं. फर्दर द सेवेंथ पॉइंट इज, वेट लेट मी डिलीट इट, कंफ्यूजिंग हो जाएगा. सेवेंथ पार्ट इज डायनामिक. डायनामिक का क्या मतलब हुआ कि ये चेंज होता रहता है, बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो फील्ड है इट्स अ डायनामिक फील्ड बिकॉज इट्स फ्लरिशिंग. नई नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, मेडिकल फील्ड में वी आर एडवांसिंग, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग लेजिस्लेशंस. ठीक है. एंड एट पॉइंट इज रजिस्टर्ड लीगल राइट, नेगेटिव राइट. रजिस्टर्ड इनको कराना इज एसेंशियल. ठीक है, दो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, इनको रजिस्टर कराना इज नॉट मैंडेटरी, बट रजिस्ट्रेशन कराने से इनकी इन्फोर्सेबिलिटी बढ़ जाती है. एंड फॉर द नेगेटिव राइट्स का क्या मतलब हुआ कि आई एम रिस्ट्रेनिंग द अदर पर्सन टू यूज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. लेट्स से मैंने एग्जाम्पल दिया, आई राइट अ बुक. ठीक है, मैंने एक बुक लिखी है, आई ऑर्गेनाइज अ कॉम्पोजिशन, तो मैं मेरे I can restrain the other person कि you cannot use my composition, तो उसके लिए I can file a suit in court. तो ये थे हमारे बेसिक characteristics of intellectual property right. I hope it is clear, और अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज नोट दैट डाउन, हम एंड में वो सब क्लियर कर लेंगे. ठीक है, सो अब आगे चलते हैं. या सो दीज आर मेजरली ऑफ 6 काइंड. तो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से? ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेट सीक्रेट एंड जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम पढ़ भी क्यों ही रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का टू स्टिमुलेट किसको करेंगे? द मेकर, द ओरिजिनेटर ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. बेसिकली अगर हम कोई इन्वेंशन करते हैं और अगर हमारे को उसका कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग पेड फॉर द सेम, तो हम कोई नई इनोवेशन करेंगे ही क्यों? हम कोई नई चीज लाएंगे ही क्यों? तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट देने के लिए ये आईपीआर राइट्स होते हैं. तो दीज आर वेल रिकॉग्नाइज्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स. एक्सक्लूसिव का मैंने मतलब बताया खाली उस पर्सन के, और इकोनॉमिक मतलब जिससे वो मनी जनरेट कर सके. ऑफ द क्रिएटर टू स्टिमुलेट फर्दर इनोवेशन, जिससे कि वो फर्दर इनोवेटिव आइडियाज को प्रेजेंट कर सके बिफोर द होल वर्ल्ड. और दीज आर क्रिएटिविटी इन द वेरिड फील्ड, या फिर कोई क्रिएटिविटी ला सके, जैसे म्यूजिक कंपोजिशंस होते हैं, डांस फॉर्म्स होती हैं, या न्यू बुक्स होती हैं राइटर्स की. सो सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, इनको स्टिमुलेट करने के लिए आईपीआर जनरेट किए जाते हैं. अब एक प्रिंसिपल है क्विड प्रो क्यो, ये बहुत एग्जाम्स में या मॉक्स में आप लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा. तो क्विड प्रो क्यो किस बिहाफ पे या किस जंक्शन पे स्टैंड करता है? इट स्टैंड्स ऑन द जंक्शन ऑफ मोनोपोली. अब मोनोपोली कैसे जनरेट होती है कि अगर मैंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जनरेट किया, लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इन्वेंशन. ठीक है, तो अगर मैंने वो इन्वेंशन करी तो मेरे को उस इन्वेंशन के रिटर्न में क्या मिलेगा? तो दिस इज क्विड प्रो क्यो, दिस फॉर दैट, मुझे उसके रिटर्न में क्या मिलेगा? तो होल्डर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैज अ मोनोपोली ऑन इट्स यूसेज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. तो ये जो मोनोपोली होती है
इस प्रिंसिपल पे स्टैंड करती है। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि क्विड प्रो क्यो किस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें याद रखना है कि ये मोनोपोली एस्टैब्लिश करता है, एक्सक्लूसिव राइट्स एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सो डू रिमेंबर दिस। ओके, सो मूविंग अहेड, या सो देखो अब इसके अंदर देयर आर 5 ऑफ दीज। ठीक है, इसके अंदर मैंने 5 लिखे हैं एंड द 6th वन आई वुड बी गिविंग यू इन द एंड, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं थी तो आई वाज एबल टू अकोमोडेट ओनली दीज। तो अगर जो 6th वाला है उसको हम एंड में क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। मीनिंग क्या होता है, कॉपीराइट का मीनिंग क्या होता है, सबको बेसिक मीनिंग सबको पता होते हैं, बट क्या होता है कंपैरेटिव टर्म्स में हम कभी कभार उसमें एरर जनरेट कर देते हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाला जो चीज है, लेट्स से सॉफ्टवेयर पेटेंट में आएगा, ट्रेडमार्क में आएगा, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स में आएगा या कॉपीराइट में आएगा। आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि इनमें से लेट्स से किसी ने कोई एल्गोरिथम जनरेट की, तो वो किस में आएगा, पेटेंट में आएगा, कॉपीराइट में आएगा, ट्रेडमार्क में आएगा। तो यू वुड गेट कंफ्यूज, क्योंकि हमें बेसिक मीनिंग पता है पर हमें कॉम्प्रिहेंसिवली उनका मीनिंग नहीं पता एक दूसरे के कंपैरिजन में। दस आई मेड दिस कंपैरेटिव टेबल जिससे कि यू अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, तो आप कॉपीराइट से शुरू करते हैं। द राइट ऑफ द क्रिएटर्स ओवर द लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क हो उसके ऊपर एक क्रिएटर का राइट। दीज आर प्रोटेक्शन फॉर द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आता ही आता है। ओरिजिनल एक्सप्रेशन, आइडियाज, तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट होते हैं। ठीक है, तो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है इसके अंदर ओरिजिनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज ओरिजिनल है तभी वो कॉपीराइट के अंदर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ठीक है, और तो ये क्रिएटिव वर्क होते हैं और ओरिजिनल होते हैं, ये दो वर्ड इसके अंदर याद रखने हैं। फॉर द पेटेंट्स पे आते हैं। पेटेंट लीगल रिकॉग्निशन टू द इन्वेंशंस। किसको, इन्वेंशन को, कोई इन्वेंशन, कोई नई इनोवेटिव चीज लाए। फॉर द प्रोडक्ट और द प्रोसेस, इसके अंदर प्रोडक्ट भी आता है और प्रोसेस भी आता है। प्रोवाइडिंग न्यू वे ऑफ डूइंग अ थिंग, कोई नया तरीका दिया ऑफ डूइंग अ थिंग। अब इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेटेंट्स के, दीज आर नोवेल मतलब समथिंग न्यू, इन्वेंटिव मतलब समथिंग इनोवेटिव, और इंडस्ट्रियल यूटिलिटी मतलब जिसकी कोई यूसेज हो। मतलब ऐसा नहीं है कि लेट्स से कोई 2-3 प्रोडक्ट पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करते थे, आपने उनका मिक्सचर बना दिया एंड उसको प्रेजेंट कर दिया मार्केट में, तो वुड दैट कम अंडर पेटेंट? सो द आंसर इज नो। कोई मिक्सचर कभी भी किसी पेटेंट के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उसका कोई नोवल या फिर इन्वेंटिव स्कोप नहीं है। ठीक है, तो किसी भी चीज को पेटेंट बनने के लिए ये 3 चीजें असेंशियल है। जैसे कि कॉपीराइट बनने के लिए, अगर इधर देखो, कॉपीराइट बनने के लिए वो चीज इनकॉर्पोरल राइट होनी चाहिए। इनकॉर्पोरल का मैंने मतलब बताया, इंटेंजिबल। एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, नेगेटिव राइट जनरेट करते हैं कॉपीराइट, और असाइनेबल राइट्स होते हैं। सिमिलरली पेटेंट्स के लिए वो चीज नॉवल होनी चाहिए, इन्वेंटिव होनी चाहिए और इंडस्ट्रियल यूटिलिटी वाली होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल राइट्स ये भी एस्टैब्लिश करते हैं। पर हमें एक चीज याद रखने की जरूरत है कि डिस्कवरीज और कंप्यूटर प्रोग्राम्स पेटेंट्स के अंदर नहीं आते हैं, और ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स विच वी डू। तो ये दोनों डिस्कवरीज जो होती हैं, देखो डिस्कवरीज और इन्वेंशन में देयर इज अ डिफरेंस। इन्वेंशन एक ऐसी चीज होती है जिसको हमने इनोवेटिवली डेवलप किया, क्रिएट किया, वेयरएज जो डिस्कवरीज होती है दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट, हमने बस उसको खोज के निकाला है, वी जस्ट फाउंड दैट आउट, पर हमने कुछ नया क्रिएट नहीं किया। तो जब तक हम कुछ नया क्रिएट नहीं करेंगे इट वोंट लाई अंडर पेटेंट्स। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद ट्रेडमार्क पे आते हैं। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स सिंबल्स, वर्ड्स, नेम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स विच डिफरेंशिएट। अब इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट, जिससे कि एक चीज, एक लेट्स से एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट दूसरे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट से अलग हो सके। सो इट डिफरेंशिएट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो ट्रेडमार्क क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। फर्दर इट मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक, जो ट्रेडमार्क होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए टू एग्जिस्ट। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप, जैसे अभी कैफे कॉफी डे है तो मैं कैफे टी डे ले आई, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सेम रिजाउंडिंग वर्ड्स या फिर कोई कलर कॉम्बिनेशन मैंने सेम रख लिया तो वो चीज इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये चीज याद रखना, दोज शुड बी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। अब हम आगे चलते हैं जीआई पे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। नेम और साइन
ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन। इसके अंदर ये यूनिकनेस है स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन वाली, मतलब एक लोकेशन के रिस्पेक्ट में ये टैग दिया जाता है। किस बेसिस पे? कि मान लो एक कम्युनिटी है, वो कुछ भी एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करती है और कम से कम लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर जनरेटिंग दैट प्रोडक्ट। लेट्स से कश्मीर की पश्मीना शॉल, यू माइट बी कोजन विद दैट कि कश्मीर में पश्मीना शॉल इट्स वेरी पॉपुलर फॉर इट्स क्वालिटी, इट्स मटेरियल, फॉर इट्स सॉफ्टनेस। तो वो चीज एक कम्युनिटी को राइट दिलवाती है कलेक्टिवली। मतलब ये जो जीआई टैग्स है ना, ये एक इंडिविजुअल नहीं ले सकता। दीज आर द राइट्स ऑफ अ कम्युनिटी जो वो कलेक्टिवली सीक करते हैं। ठीक है, इट इंश्योर्स द गुड क्वालिटी। अब अगर देखो कश्मीर से वो पश्मीना शॉल हमने ली, तो अगर आपको पश्मीना शॉल पे वो टैग मिलेगा, अगर कश्मीर की पश्मीना शॉल है, तो उससे आपको क्या पता लगेगा कि इट्स ऑफ सम क्वालिटी। जैसे हम हॉलमार्क देखते हैं, तो दैट एस्टैब्लिशेस सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड। तो सिमिलर गोज विद जीआई टैग। तो इसमें तीन चीजें याद रखना कि ये कोई इंडिविजुअल्स को नहीं मिल सकता, दीज आर कलेक्टिव राइट्स। सेकेंड चीज, ये लोकेशन और ओरिजिन के बेसिस में मिलते हैं। एंड थर्ड चीज, ये क्वालिटी को एस्टैब्लिश करते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट की, ठीक है, उस लोकेशन के रिस्पेक्ट में। अब आते हैं ट्रेड सीक्रेट पे। ट्रेड सीक्रेट, एनी वैल्यूएबल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इफ नोन टू द कॉम्पिटिटर कुड कॉज कमर्शियल लॉस। अब इसमें कमर्शियल लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज जिसकी कोई वैल्यू है इकोनॉमिकली, अगर वो किसी कॉम्पिटिटर्स को पता लग जाएगी तो हमको कमर्शियल लॉस हो जाएगा और उनको कमर्शियली उस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी कोई ना कोई कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए। लाइक से जैसे हम लोग बहुत कॉमनली सुनते हैं कि एग्जांपल कोका कोला का एग्जांपल, या फिर लेट्स से केएफसी की सॉस। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं ये क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स हैं। अगर किसी और को ये पता लग जाएंगी तो दे कैन ड्रॉ बेनिफिट आउट ऑफ दोस। तो हम लोगों को उस बेनिफिट को डिनाई करना पड़ेगा टू somehow conserve our benefit या फिर to conserve our profits। तो इसकी कोई ना कोई कमर्शियल वैल्यू होना जरूरी है और उसके खो जाने से या उसके ना होने से हमारा कमर्शियल लॉस होगा। तो ट्रेड सीक्रेट इस बेसिस पे स्टैंड करता है। तो ट्रेड सीक्रेट सबसे ज्यादा सिंपल होता है, एक बार समझ आ गया तो इसमें आगे कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इनैक्टमेंट्स में। इनैक्टमेंट्स देखो सबकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डेट्स याद कर लेना। देखो 1957 में कॉपीराइट आया। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट 1957, मतलब ऐसे याद कर लो 47 में हमारी जो इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद 57 में क्या हुआ, कॉपीराइट आ गया। ठीक है, 10 इयर्स का लगा लो। उसके बाद पेटेंट्स की बात करते हैं। पेटेंट एक्ट इन 1970 में आया पेटेंट एक्ट, अमेंडेड इन 2005। अब ये 2005 वाली अमेंडमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कोविड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 2005 के अमेंडमेंट्स के बाद क्या आया था, ड्रग्स, फूड और केमिकल्स को इंक्लूड कर लिया था पेटेंट्स में। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट पेटेंट्स आ गए थे। तो 2005 की अमेंडमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम लोग को मेजरली क्या याद रखना है, 1970 का जो पेटेंट्स एक्ट है वो, 1957 का जो कॉपीराइट एक्ट है वो, एंड फर्दर ट्रेडमार्क के रिस्पेक्ट में 1999। ठीक है, ट्रेडमार्क 1999 एंड सेम गोस विद जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 1999। ठीक है, दोनों का 1999 है। और फिर ट्रेड सीक्रेट की बात करते हैं। ट्रेड सीक्रेट का ऐसे स्पेसिफिकली डिफरेंट कोई लेजिस्लेशन नहीं है। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड, देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड सीक्रेट। अदर लॉज सच एज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉपीराइट लॉ, ये सब गाइड करते हैं। क्योंकि देखो ट्रेड सीक्रेट है, मैंने कोई ट्रेड सीक्रेट, लेट्स से मेरी कंपनी में कोई ट्रेड सीक्रेट है, तो मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगी कि ये चीज लीक नहीं होनी चाहिए बाहर, तो ये किसमें आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो इसलिए ट्रेड सीक्रेट का कोई ऐसे डिफरेंटली कोई यूनिक लॉ नहीं है। ठीक है, सो मूविंग अहेड, या सो हम अब बात करते हैं वैलिडिटी की, कि कितने टाइम के लिए वैलिड रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट की। इट वुड बी वैलिड फॉर द लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स। लाइफ ऑफ द ऑथर कितनी लाइफ है, उसके आगे 60 ईयर्स। पेटेंट 20 ईयर्स आफ्टर विच इट गोज टू पब्लिक डोमेन। 20 ईयर्स के बाद ये रिन्यू नहीं होता है, रिन्यू करने की लॉ में कोई पॉलिसी नहीं है, बट इट कैन बी एवरग्रीन। अब एवरग्रीन का क्या मतलब होता है, बेसिकली लीगली हम नहीं कर सकते ये चीज, बट कंपनीज क्या करती हैं, स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दे जस्ट लाइक एड समथिंग, मतलब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ओरिएंटेशन कर देते हैं अपनी मेडिसिन का, उसमें थोड़ा बहुत कुछ मिक्स कर देते हैं, थोड़ी ओरिएंटेशन केमिकल्स चेंज कर देते हैं, उसके बेसिस पे वो मार्केट में एक नया पेटेंट प्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो उससे क्या होता है,
इनिशियल 20 ईयर का पीरियड और 20 ईयर्स के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने एक नया पेटेंट लाए हैं वो मार्केट में। तो दैट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, नॉट अ लॉ, बट लोग ये करते हैं। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, एंड 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे, देन यू नीड टू फाइंड दैट आउट। ठीक है, तो अब चलते हैं ट्रेडमार्क पे। ट्रेडमार्क इज फॉर 10 ईयर्स एंड कैन बी रिन्यूड फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कंपनीज ट्रेडमार्क्स लेती हैं। अब कंपनीज तो कितने लंबे टाइम के लिए चलती हैं, तो कितने भी बार ये रिन्यू करा सकते हैं अपने ट्रेडमार्क को, और आफ्टर एवरी 10 ईयर्स ये रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन 10 ईयर्स एंड कैन बी रिन्यूड, 10 ईयर्स के लिए होता है एंड इसको फर्दर हम रिन्यू भी करा सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट इनडिफाइनाइट दस वेरी एक्सपेंसिव। जो ट्रेड सीक्रेट होते हैं इट्स फॉर इनडिफाइनाइट पीरियड। देखो ट्रेड सीक्रेट का बेसिक समझना। ट्रेड सीक्रेट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसा सीक्रेट रख रहे हैं जो हम किसी को नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेट्स से मेरी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अब मैं उनको, अगर मैं चाहती हूँ दे शुड मेंटेन देयर लॉयल्टी, दे शुड नॉट रिवील माय सीक्रेट, तो मुझे उनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा या फिर कुछ अपनी पॉलिसीज में ऐसी कंडीशंस रखनी पड़ेंगी। तो उस चीज के मेंटेनेंस में बहुत पैसा लग जाता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड सीक्रेट, इसलिए ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और इनडिफाइनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते, जितने वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी तब तक वो ट्रेड सीक्रेट एग्जिस्ट करेगा। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन कैन, मतलब हम अगर कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन की बात करें, इट कैन बी रजिस्टर्ड बट नॉट नीडेड रजिस्ट्रेशन फॉर एनफोर्समेंट। अब लेट्स से मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि कोई मैंने बुक बनाई, अब मैंने जब वो बुक मार्केट में निकाली ऑन माय नेम, आई हैड अ कॉपीराइट चले, मैंने इन्फोर्समेंट के लिए मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की, मैंने बस वो बुक निकाली मार्केट में एंड उस बुक के पीछे मेरा नाम था कि आई एम द ऑथर। तो अगर कोई और उस बुक को मिसयूज करता है या ट्राई टू प्रिंट ऑन हिज और ओन नेम, तो मैं उसको इन्फोर्स कर सकती हूँ इवन विदाउट रजिस्टरिंग। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट के रिस्पेक्ट में इन्फोर्समेंट अगर मुझे करानी है तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, बट लोग रजिस्ट्रेशन इसलिए करा लेते हैं क्योंकि उससे इन्फोर्समेंट में एक ये होता है प्लस पॉइंट मिल जाता है, एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी विद रिस्पेक्ट टू कॉपीराइट। अब हम बात करते हैं पेटेंट्स की। रजिस्ट्रेशन मस्ट, पेटेंट्स के रिस्पेक्ट में रजिस्ट्रेशन मस्ट है। इन इंडिया देयर आर 4 ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस है? 4। अभी ब्रांचेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि 4 ही ब्रांचेस हैं और हेड क्वार्टर कहाँ है? कैलकाटा। ठीक है, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में उसके अदर ब्रांचेस हैं। अब आते हैं हम ट्रेडमार्क पे। ट्रेडमार्क एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बिना भी इट एग्जिस्ट विद कंटिन्यूअस एक्सटेंसिव यूज। इसका क्या मतलब है कंटिन्यूअस एक्सटेंसिव यूज? लेट्स से मेरे पास कोई ट्रेडमार्क है, लेट्स से कोई भी मेरे पास नाम है एंड मैं उसको ओवर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मैं उसको यूज कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, बैक टू बैक मैं उसको यूज करे जा रही हूँ एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर्स के बाद कोई और उस ट्रेडमार्क को यूज करने लगता है एंड देन आई कैन गो टू द कोर्ट आस्किंग कि मैंने इस ट्रेडमार्क को कंटिन्यूअसली एक्सटेंसिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज किया है, तो इट्स माय लाइक माय सोल ओनरशिप। जबकि मैंने कोई इन्फोर्समेंट के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करी, बट स्टिल इट वुड स्टे विद मी क्योंकि मैंने उसको यूज करना पहले शुरू करा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करा। इसलिए ट्रेडमार्क में भी इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूजुअली लोग रजिस्टर करा लेते हैं टू बी ऑन द सेफर एज। अब हम आते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन में। इट कुड बी रजिस्टर्ड बाय ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। इंडिविजुअल्स तो जोग्राफिकल इंडिकेशंस वैसे भी रजिस्टर नहीं कर सकते, एक ग्रुप कर सकता है, तो इट कैन बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर करवाना है तो करवा सकते हैं एंड कभी कभार गवर्नमेंट भी ऑटोमेटिकली इनको रजिस्टर्ड कर देती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट। अब आते हैं ट्रेड सीक्रेट पे, प्रोटेक्टेड विदाउट रजिस्ट्रेशन। सो दीज आर प्रोटेक्टेड विदाउट रजिस्ट्रेशन, में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सीक्रेट को अगर आपको सीक्रेट रखना है तो उसको सीक्रेट बना के रखो, अब इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई बात आती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लाइसेंसिंग पे। लाइसेंसिंग हम कॉपीराइट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। सबसे पहले कुड बी लाइसेंस, मैंने आपको बताया लाइसेंसिंग और असाइनिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लाइसेंसिंग भी हो सकती है, मतलब मैं इसको सेल भी कर सकती हूँ और मैं इसको असाइन भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो सेलिंग ऑफ ओनरशिप और लिमिटेड परमिशन दोनों चीजें मैं इसमें कर सकती हूँ। पेटेंट्स क्या है? पेटेंट्स कुड बी लाइसेंस, मतलब मैं इनकी परमिशन भी दे सकती हूँ, एंड कुड बी असाइन, मैं इनको एक्सक्लूसिवली ट्रांसफर भी कर सकती हूँ। तो इन शॉर्ट मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ, इन दोनों में लाइसेंसिंग असाइनिंग होती है। फर्दर इसमें भी लाइसेंसिंग असाइनिंग होती है, ट्रेड सीक्रेट में भी लाइसेंसिंग असाइनिंग होती है। Why I added this head is because of geographical indication, क्योंकि geographical indication में कोई असाइनिंग या लाइसेंसिंग नहीं होती है, इट कैन ओनली ट्रांसफर। मतलब
ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, देखो लेट्स से एक्स है, ठीक है, ही इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है, एक्स जो है वो फादर ऑफ वाई है, तो अगर एक्स ने अपने टाइम में कोई जोग्राफिकल इंडिकेशन उसके पास था, ठीक है, तो अगर वो ही डाइज, ठीक है, वो मर जाता है, तो अब ये जोग्राफिकल इंडिकेशन ट्रांसफर हो सकती है टू हिज सन बाय इनहेरिटेंस, ट्रांसफर हो सकती है, बट ये जो एक्स है ये ऐसा नहीं कर सकता कि किसी और को ये असाइन कर दे, नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जोग्राफिकल इंडिकेशंस जो होते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन के केस में नाइदर लाइसेंसिंग नॉन असाइनिंग, बस हम ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू सक्सेशन। सक्सेशन कैसे होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर वो सन को मिल जाएगी बाय इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रेड सीक्रेट पे, ट्रेड सीक्रेट जो असाइन हो सकते हैं और लाइसेंस भी हो सकते हैं, मैंने कर ही दिया था। चलो अब आगे चलते हैं। सो अब ये है एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें बहुत। सबसे पहले हम देखते हैं कॉपीराइट का, ठीक है। कॉपीराइट, दीज आर लिटरेरी वर्क, इंक्लूड म्यूजिक, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, तो याद रखना कंप्यूटर प्रोग्राम्स कॉपीराइट में आता है, ठीक है। डेटाबेस, फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट्स, वेबसाइट्स, पेंटिंग्स और सॉफ्टवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर भी कॉपीराइट में आता है, पेटेंट में मत करके आना प्लीज, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कॉन्जिक्यूटिवली एग्जाम्स में आए हैं, तो ये और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं हम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि दोज माइट बी पेटेंट्स, बट दैट्स नॉट द केस विद रिस्पेक्ट टू कॉपीराइट, तो उस चीज को ध्यान रखना। एंड फर्दर किस चीज के लिए हम कॉपीराइट नहीं ले सकते हैं, इट केम इन टू आर एग्जाम, आइडियाज के लिए कॉपीराइट्स नहीं होते हैं, ठीक है, मेथड्स के लिए कॉपीराइट्स नहीं होते हैं, सिस्टम के लिए, प्रोसीजर के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, डिस्कवरीज के लिए, इन सब चीजों के लिए कोई कॉपीराइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये भी याद रखना कि किन चीजों के लिए नहीं होते हैं। मूविंग टू पेटेंट्स, न्यू यूजफुल प्रोसेस, कोई ऐसा नया प्रोसेस, मशीन हो जो हमने इनोवेट करी है, जो हमने क्रिएट करी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, यूजफुल इंप्रूवमेंट हो, किस चीज में हमने इंप्रूवमेंट की है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अमेजोन का जो ड्रोन है या फिर नासा का जो वेदर प्रिडिक्टर है, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, पेटेंट्स के। अब क्या चीज पेटेंट नहीं हो सकती है, एल्गोरिथम कैन नॉट बी पेटेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम, एज आई स्टेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता है पेटेंट, एटॉमिक इन्वेंशन, अच्छा एटॉमिक इन्वेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक इन्वेंशन का पेटेंट इंडिया में नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एटॉमिक इन्वेंशन को लोग सोचते हैं कि ये तो नई इनोवेशन है, बट नहीं, इंडिया में इट्स टोटली इलीगल, तो हम कोई पेटेंट नहीं ले सकते, इलीगल चीज पे क्या पेटेंट लोगे, ठीक है। तो अब आते हैं ट्रेडमार्क पे। ट्रेडमार्क, दीज आर वर्ड्स और लोगोज, मार्क, स्लोगन, शेप्स, कलर कॉम्बिनेशन, एनिमेशन, साउंड्स एक्सेट्रा विच आर डिस्टिंक्ट। इसका मेन फीचर यही है कि ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। शुड नॉट बी ऑब्सीन, ऑब्सीन नहीं होना चाहिए। अब हमने मिंत्रा के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, मिंत्रा के कॉन्टेक्स्ट में उनके लोगों को ऑब्सीन बोल दिया था लोगों ने, राइट, तो ऑब्सीन नहीं होनी चाहिए, स्कैंडलस नहीं होने चाहिए, प्रोहिबिटेड नहीं होने चाहिए किसी भी रिस्पेक्ट में, किसी कंट्री के रिस्पेक्ट में। अगर हम किसी के रिलीजियस स्पिरिचुअल इंटेंशंस को या स्पिरिचुअल बिलीफ्स को हार्म कर रहे हैं, तो दैट वोंट बी पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमार्क। डिसेप्टिव नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ दिख रहा है और एक्चुअल में कुछ है, लेट्स से कई लोगों ने देखा होगा स्काई बैग्स की रियल कॉपी, मतलब ऐसे फेक कॉपीज आती है शाई बैग करके, स्काई बैग, शाई बैग, तो ये डिसेप्टिव है, जो हम लोगों को लगता है कि स्काई बैग है बट एक्चुअल में वो शाई बैग है, ठीक है। तो ऐसे डिसेप्टिव ट्रेडमार्क्स अब नहीं ले सकते। अब आते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशंस पे। अब ये चीज ध्यान ध्यान रखना, अब ये आ जाती है एग्जाम में, मैंने आपको बताया ना जोग्राफिकल इंडिकेशंस जो है इंडिविजुअल्स नहीं लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल ले ही नहीं सकता है, तो कौन ले सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरर ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर की कम्युनिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए ले सकते हैं हम जोग्राफिकल इंडिकेशन, या फिर हैंडीक्राफ्ट के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर थ्री मेजर जिनके लिए हम जोग्राफिकल इंडिकेशन ले सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस किसी और चीज के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशंस नहीं होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लो, दो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, स्टिल आप 5, 6, 10 एग्जाम्पल्स इनके देख के जाना, क्या पता एग्जाम में आ जाए कि विच ऑफ दीज आर नॉट वन ऑफ द जोग्राफिकल इंडिकेशन, या फिर कोई रीसेंट जोग्राफिकल अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन आया है तो उसको भी देख के जाना, क्योंकि कभी कभार करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में भी वो आ जाता है। अब जोग्राफिकल इंडिकेशंस में दार्जिलिंग टी देखो, दार्जिलिंग टी जो थी वो फर्स्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो था दार्जिलिंग टी को मिला था इन 2004, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट। और दार्जिलिंग टी किस कैटेगरी में आएगी, एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। उसके बाद पश्मीना शॉल,
पश्मीना शॉल किस कैटेगरी में आएगी? मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आएगी, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, राइट? तो पश्मीना शॉल ऑफ कश्मीर। एंड फॉर द थंजावुर डॉल किस कैटेगरी में आएगी? ये आएगी हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में, जो कि तमिलनाडु का एक बहुत यूनिक लाइक ट्रेंड कह सकते हैं कि कोई भी तमिलनाडु अगर विजिट करता है तो वो इस डॉल को जरूर लेके आता है, या फिर कहीं ना कहीं इन द टूरिस्ट गाइड्स आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से। इट्स वेरी पॉपुलर। फॉर द सी शेल, ये तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, अंडमान निकोबार के सी शेल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, और ये थे इनके एग्जाम्पल्स। अब आते हैं ट्रेड सीक्रेट पे। दीज आर फॉर बिजनेस स्ट्रैटेजीज, फॉर्मूलाज, रेसिपी, क्लाइंट डेटा। अच्छा, क्लाइंट डेटाबेस याद रखना, डेटाबेस को देख के इसको ये मत कर देना कि कॉपीराइट में डाल दिया। अगर क्लाइंट डेटाबेस सीक्रेसी के रिस्पेक्ट में पूछता है तो ट्रेड सीक्रेट में आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे बड़ी बड़ी जो लॉ फर्म्स होती हैं, लिटिगेशन फर्म्स होती हैं, वो क्या करती है, अपना क्लाइंट डेटाबेस बना लेती हैं। दे डोंट वांट देयर क्लाइंट्स टू लीक। ठीक है, तो वो अपने क्लाइंट्स को कॉम्पैक्ट रखने के लिए उनका एक डेटाबेस रेडी करते हैं और उनको सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, अब फर्दर हम इसके एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स की सॉस या फिर कोका कोला की रेसिपी, जो बहुत कॉमनली हम एग्जांपल्स में देखते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन किस रिस्पेक्ट में हम लोगों को देखने हैं कि फीचर्स देख लो। सबसे पहले, दीज मस्ट बी ओरिजिनल होने चाहिए, नॉवल होने चाहिए, मतलब कुछ न्यू होना चाहिए, ऑर्नामेंटल एंड एस्थेटिक अपीयरेंस, मतलब जैसे ज्वेलरी होती है तो उसकी ऑर्नामेंटल एंड एस्थेटिक वैल्यू होती है ना, वो दिखने में जो उसका डिजाइन है वो बहुत यूनिक लगता है, तो उस डिजाइनिंग की ही वैल्यू होती है। तो दीज आर इंडस्ट्रियल डिजाइन। उसके बाद 10 इयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है इनको, 10 इयर्स का प्रोटेक्शन, एंड कैन बी रिन्यूड फॉर वन लाइफ टाइम, मतलब एक बार ही इसको रिन्यू कर सकते हैं। कितने पीरियड के लिए? 5 इयर्स के लिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट 10+5 का टेन्योर बना सकते हो इसका। 5 ये रिन्यू के बाद है, एंड रिन्यू से पहले इट वुड स्टे ओनली फॉर 10 इयर्स। ठीक है जी। उसके बाद ये किससे गाइड होता है, कौन सी लेजिस्लेशन इसको गाइड करती है? दैट इज डिजाइन एक्ट ऑफ 2000। ओके, उसके बाद टेरिटोरियल डिजाइन, ये जो होता है टेरिटोरियल इन नेचर होता है, मतलब कुछ लिमिटेड स्पेस के लिए होता है। अगर लेट्स से मैंने ऐसे ऊपर बताया था कि ज्यादातर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टेरिटोरियल होता है, अगर मैंने इंडिया में इसको रजिस्टर कराया तो दैट वुड बी फॉर ओनली फॉर इंडिया, नॉट फॉर अदर स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद डिजाइन राइट्स कैन बी असाइंड और लाइसेंस, इनको असाइन भी कर सकते हैं, लाइसेंस भी कर सकते हैं। किसको नहीं कर सकते? दैट्स ओनली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो उसको एक एक्सेप्शन की तरह याद रखना। बाकी सबको हम लाइसेंस भी कर सकते हैं और असाइन भी कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। मिनी कूपर की जो बॉडी है, उसका जो स्टाइल है, उसका जो डिजाइन है, वो कोका कोला का जो काउंटर बॉटल है, जो कोका कोला की बाहर आउटर बॉटल है, दैट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। फॉर द वेस्पा स्कूटर, वेस्पा का जो स्कूटर का जो डिजाइन है, दैट यूनिकनेस, दैट एंटिकिटी, वो सब किस में आएगा? वेस्पा स्कूटर के डिजाइनिंग में, मतलब इंडस्ट्रियल डिजाइन में। ठीक है, तो दीज वर द एग्जाम्पल्स। चलो अब एक सेकेंड आगे चलते हैं। वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन स्लाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये कॉमनली आ जाता है एग्जाम में, बहुत कॉमन है। सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे कब बनाया जाता है, दैट्स 26 अप्रैल। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे? अप्रैल से अप्रैल फूल याद कर लो, अप्रैल फूल, बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमें दिखते कहाँ है? ठीक है, दिखते नहीं है, तो अप्रैल फूल। एंड फॉर द 26 को कैसे याद कर सकते हैं हम? लेट्स से हम लोग 26 को रिपब्लिक डे से याद कर लेते हैं। ठीक है, 26 अप्रैल। तो जैसे भी आपसे हो सके वैसे याद कर लेना, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो ये सब आना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन पेरिस कन्वेंशन। कब रिकॉग्नाइज हुई थी? पेरिस। अब देखो, इसमें एक चीज देख लेना, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर मैंने बोला है 2 चीजों में डिफाइंड होते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल होते हैं, इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक होते हैं कॉपीराइट। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियल वाले जो होते हैं वो पेरिस कन्वेंशन से गाइड होते हैं, और जो कॉपीराइट के रिस्पेक्ट में होते हैं वो बर्न कन्वेंशन से गाइड होते हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट को, कॉपी को पेपर से याद कर लो, पेपर को बर्न से याद कर लो। हमने पेपर को बर्न कर दिया। ठीक है, ऐसे कभी नहीं भूलोगे, आई एम डैम श्योर। तो या इसके बाद हम लोगों को ये देखना है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में आया था, मतलब पेरिस कन्वेंशन जो था वो कब आया था? 1883 में। और बर्न कन्वेंशन जो हम कॉपीराइट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, जिसकी जो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करता है, दैट केम इनटू बीइंग इन 1886।
तो कितने साल का डिफरेंस है दोनों में? 3 years का. दो इनके ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इफ यू कैन रिमेंबर, सो रिमेंबर दोस. उसके बाद आते हैं हम बोथ ट्रीटीज अंडर वीपो. अब वीपो क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. इसकी फुल फॉर्म याद रखना. दोनों ही जो कन्वेंशन हैं वो किसके अंदर आती हैं? वीपो के अंदर आती हैं. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. फर्स्ट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन कॉपीराइट. फर्स्ट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कौन सा था? मैंने अभी बताया, बर्न कन्वेंशन. ठीक है, बर्न कन्वेंशन फर्स्ट कॉपीराइट के रिस्पेक्ट में जो एग्रीमेंट हुआ था वो बर्न कन्वेंशन था. अब इन दोनों फुल फॉर्म्स को अच्छे से याद कर लेना, ट्रिप्स और WPPT. ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज ट्रिप्स. ठीक है, इनकी ना लाइक एक्रोनिम्स दे देंगे एंड यू नीड टू सिलेक्ट कि कौन सी इनमें से इसकी फुल फॉर्म होगी, तो इसलिए यू नीड टू रिमेंबर दीज. उसके बाद WPPT का वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी 1996. डेट रहन देना चाहे, बस इनकी फुल फॉर्म्स याद रखना. फर्दर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं? दैट इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. और डिपार्टमेंट कौन सा होता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन. ठीक है जी. तो ये थी हमारी मेजर जो कंटेंट था इस वीडियो का. तो आई विल फॉरवर्ड यू द PPT ऑफ द सेम. सो अब जो भी डाउट्स हो यू कैन आस्क दोस. जस्ट वेट अ सेकेंड. यस यार, तुम लोग अपने माइक्स वगैरह यू कैन स्विच दैट ऑन एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आई विल ट्राई टू आंसर दोस. किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन स्पीक आउट लाउड, बोल दो. आई विल ट्राई टू क्लियर दैट अप. मैम, हेलो मैम. या आई एम हियर. मैम, IPR के एनी रिसोर्स जिससे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? I'll try to provide you with some PDFs. अगर वो sufficient होगी तो that would be helpful for you. बाकी see, intellectual property right ना काफी limited होता है in exam. मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी इधर उधर से क्वेश्चन आ जाएंगे. मेजर जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो इसी रिस्पेक्ट में रहते हैं कि इनएक्टमेंट्स कौन सी गाइड करती हैं इनको, या फिर यू वुड बी गिवन सर्टेन एग्जांपल्स. आपको बताना होगा कि दीज आर विच काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ठीक है, या फिर करेक्टरिस्टिक्स दे देंगे. तो यही मेजर क्वेश्चंस रहते हैं. बाकी रही प्रैक्टिस की बात, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू विद अ PDF जिसके अंदर आई विल ट्राई टू इनकलकेट लाइक 40 to 50 क्वेश्चन. तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा टू प्रैक्टिस. बाकी व्यू LLB के रिस्पेक्ट में ज्यादा डिटेल में जाने की और इधर उधर से देखने की इतनी जरूरत नहीं है. जस्ट बी रिस्ट्रिक्टिव, क्योंकि इतना ही आता है कंटेंट. मेजरली जो चीजें आती है वो यही आते हैं कि कितने पीरियड के लिए रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. मतलब अगर लेट्स से कॉपीराइट है तो कितने पीरियड के लिए रहेगा, ट्रेडमार्क